Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on financial instruments under India's 32 107 and 109. And with major topic is our financial liability with default in payment. So let us see data given in this scenario. So we are given that poor limited borrow rupees 120 lakhs from a scheduled bank. The terms of the loan are under rate of interest is 10% per annum payable yearly. Term of loan is 12 years. Principal to be paid at the end of tenure, that is 12 years. So poor limited defaulted in payment of interest in year 5, 6, 7 and 8 and the loan reschedule agreement took place at the end of 9th year with the bank. And as per the agreement, poor limited is required to pay rupees 220 lakhs at the end of 10th year. The default continues till the end of 10th year. फिर आपके पास डिफरेंट MCQ है. नंबर 1, we have to calculate book value loan at the end of 10th year. Second, we have to calculate additional amount to be paid to the bank on account of rescheduling. And interest is compounded in case of default. तो लेट अस सी, पहले आपको डाटा क्या मेंशन किया है. So data given is our poor limited है. So it has taken the loan in 0 time period. It means loan is taken and the amount is rupees 120 lakhs. और इसका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज अवर 10%. सो दिस इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. पर आपने जो लोन को रीपे करना है, दिस इज टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स. इवन दैट नाउ देयर इज डिफॉल्ट इन इंटरेस्ट. अब आपने इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं किया है फॉर 5th ईयर, 6th ईयर एंड 7th ईयर एंड 8th ईयर. इंटरेस्ट नॉट पेड. So interest is not paid for 5th, 6th, 7th and 8th year. So therefore loan is rescheduled at the end of 9th year and it is decided that as per agreement now company will pay 220 lakh at the end of 10th year. तो आपने फाइनल जो पेमेंट करनी है वो आपने करनी है एट एंड ऑफ 10th ईयर और अमाउंट आपने जो पे करना है 220 लैक्स. तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है MCQ नंबर 1 में कि आपकी कितना अमाउंट ड्यू है. MCQ 1, तो देयर आस्किंग कैलकुलेट बुक वैल्यू लोन एट एंड ऑफ 10th ईयर. आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज बुक वैल्यू ऑफ लोन एट एंड ऑफ 10th ईयर. तो आपको ये देखना है कि आपको 10th ईयर आपके कितने ईयर्स का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा. आप देखो आपने 4th ईयर का जो इंटरेस्ट था वो को पे कर दिया है. लोन आपका 120 लैक्स चल रहा है तो रुपीज़ आपके चल रहे हैं 120 लैक्स. अब इंटरेस्ट आपका कंपाउंड होगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट एंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यही है जो 10% चल रहा है. अब देखिए कितने ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा. जैसे जो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और बीच में आएगा 9th ईयर, 5 ईयर एंड अप टू 10, इट इज 6 ईयर. तो आपने इसमें ऐड करना है 1 + 10% फॉर 6 ईयर. ये कंपाउंड हो जाएगा आपको. तो लेट अस सी व्हाट इज दिस वैल्यू 1.1 रेज़ टू पावर 6. This amount is coming 120 lakhs into 1.771561. So into करेंगे 120 lakhs. This amount is coming 212 lakh 58,732. ये आपका अमाउंट आ जाएगा जो टोटल लोन का ड्यू हो गया है विच इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ लोन. इट मीन्स total loan due with interest at the end of 10th year. So now you can see which option is correct. So this is our second option. Option B is correct. Second they are asking, so what is the additional amount to be paid to the bank on account of rescheduling. तो आपको additional amount कितना पे कर रहे हैं rescheduling में. This is our second MCQ. what is additional amount. तो अब देखिए आपने अब एग्री किया है कि ड्यू टू रीशेड्यूलिंग एट द एंड ऑफ 10th ईयर वी विल पे 220 लैक्स. एडिशनल अमाउंट आ जाएगा आपका टू बी पेड टू बैंक इज 220 लैक्स और जो उसकी बुक वैल्यू है विच इज दिस वन 212 लैख 58,732. सो दिस अमाउंट इज कमिंग 220 lakhs minus this
किसी की रुपीज 741,268, तो ये अमाउंट आ रहा है आपका 741. यू कैन सी करेक्ट ऑप्शन इज अवर ऑप्शन सी. So next is MCQ number 3. So they are asking, so what is the accounting treatment of additional amount paid to bank at the end of the term year? तो आपने जो एडिशनल अमाउंट जो को पे किया है 741,268, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको शो करना है. डिफरेंट ऑप्शन है कि आपको ये पीएनएल में आपका क्रेडिट हो जाएगा या डेबिट हो जाएगा या इक्विटी में चला जाएगा. तो पहले इसके ऊपर एक एंट्री देखते हैं. तो फिर लाइबिलिटी है आपकी बुक्स में, तो आप एंट्री कर लीजिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जिस ईयर लोन अकाउंट डेबिटेड. इसकी आपको बुक वैल्यू कितनी की, बुक वैल्यू की हमारी बुक्स में 212, जिसे ये 58,732. फर्स्ट आप शो कीजिए जो आपने पेमेंट की है टू बैंक अकाउंट को. पेमेंट हम कर रहे हैं 220 लाख से. इट मीन जो आपका एक्सेस अमाउंट है जो आप पे कर रहे हैं, एंड किसी ये अगर लोन तो ये आपका पीएनएल में चार्ज हो जाएगा. इट मीन्स ये आपका एक्सपेंस माना जाएगा इन दैट ईयर. तो जिस अमाउंट के लिए वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 741, जिस इज 268. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि दिस विल बी डेबिटेड टू पीएनएल एज एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज ऑप्शन नंबर ए is correct. So in this lecture we have discussed a case scenario based on financial instruments under Ind AS 32, 107 and 109 with major topic on financial liability which is default in repayment of interest. फर्दर कॉपी we will continue next lecture. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.